Okay, good morning, student. So this is our we were learning about the module our next module, which was your pavement design. Okay, in the last class we have discussed what are the components of the pavement design. Am I audible, everyone? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. So in the last class we learned about the different layers, right? These layers. The topmost layer is known as your surface course or the top course, okay? And the topmost layer consists of two layers, okay? First is your wearing course or surface course, another is binder course, then comes your base course, then subbase, then subgrade. Please remember that subgrade is what? Subgrade is your this thickness. Sorry, pavement is the thickness of all the layers which is above the subgrade. Okay, this is your subgrade, whereas this is your pavement. Okay, so we learned that how what is the component, what are the materials that we are using for constructing this each layers. Okay, and also we know that as we go up from the bottom layer, your property should increase. Why? Because the topmost layer is in direct contact with the wheel load, right? So for which this layer will receive much greater amount of pressure, okay, compared to the bottom layers, subsequent bottom layers, because the force, this wheel load force will, stress will distribute in this manner, okay, like this. So this is for the top layer, this is the area of the contact, okay. For second layer, this is area of contact. Third layer, this is area of contact. That means what? The area upon which the load is acting is increasing as we go downward. So if the area increase, your load is constant, and we know pressure is equals to what? P by area, right? So if area is increased, your pressure will decrease. That means the pressure at this point will be very less compared to the pressure at this point. Okay, so for that reason only we have to keep good quality materials. Okay, good quality materials, or the materials which has property of a better quality, okay, in the topmost layer, and as we go down this property will reduce. Okay, and what are those properties? Those are hardness, toughness, that we are already learning in our highway lab. Okay, what is the toughness of the aggregate, hardness, okay, what should be the shape, flakiness index, all these things that only we are learning in our highway and transportation engineering lab. Now see, in this lecture we will learn factors affecting pavement design. Okay, in pavement design what we are learning, we must we will, after this module is covered, okay, you will learn what, how to calculate the thickness of each layer as well as the total thickness of the pavement. Now this thickness of pavement, what should be the thickness of each layer, okay, and the total thickness of the pavement, it depends on several factors. Today we will learn those factors only. मैम एक स्टूडेंट ज्वाइन नहीं हो पा रहा. Okay, okay, okay. Okay. See, so we will learn this only. Okay, factors affecting the pavement design, and under these factors only there will be some terminologies which we must have idea. Okay, मतलब हम लोग को थोड़ा concept होना चाहिए कि क्या क्या terminologies that we will use in our future lectures. Okay, so उसमें एक आता है कि axle configuration. Second is standard axle load. Okay, this term is quite often used in your pavement design. Okay, मतलब कुछ भी अगर हम pavement design करेंगे तो we have to convert all the loads into one standard value, that is a standard axle load. Okay, and
कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब कि कौन आ रहा है, ठीक है। Then comes your contact area, the area upon which your load is being applied, that is your contact area. Okay, that also we should have some idea कि वो एरिया किस टाइप का होता है, whether it is circular in nature, whether it is triangular or elliptical, कौन सा होगा, ठीक है, that we will learn. Contact pressure, contact pressure is what, the pressure which is acting on that contact area, मतलब एक wheel है, ठीक है, say for example this is your wheel, okay, ऐसा एक wheel है, now your load is acting from this wheel, okay, and this is your pavement, pavement का thickness ऐसे नीचे जा रहा है, different layers are there, okay. now contact area क्या है, ये जो छाप आता है imprint इसका, यहाँ पे अगर हम इसको superimpose इसको मतलब उठा देंगे तो we will get one imprint, okay, that is your contact area, मतलब कि pavement के ऊपर एक imprint आ जाता है, okay. तो उसी imprint के मतलब उसी एरिया से तुम्हारा ये लोड इज ट्रांसफर टू दी पेवमेंट, ओके. तो ये जो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है दैट इज योर कॉन्टैक्ट प्रेशर. एंड वन इंपॉर्टेंट टर्म वी विल लर्न विच इज रिजिडिटी फैक्टर, ओके. डिपेंडिंग, देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेशर, एक है कि कॉन्टैक्ट प्रेशर, ओके, एंड अनदर इज टायर प्रेशर, मतलब कि टायर के अंदर क्या प्रेशर है वो, और दूसरा है ये जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है इसके मतलब जो इम्प्रिंट है उसके ऊपर जो प्रेशर आ रहा है दैट इज द कॉन्टैक्ट प्रेशर. इन दोनों के बीच का रिलेशन इट इज डिफाइंड बाय रिजिडिटी फैक्टर, ओके. ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एमसीक्यू पर्पस. नाउ और भी टर्म्स आता है जैसे इक्विवेलेंट सिंगल एक्सेल लोड, फिर इक्विवेलेंट एक्सेल लोड फैक्टर्स, ये सब क्या है, एंड डिपेंडिंग एंड बेस्ड ऑन दिस टर्म्स वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम, ओके. इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आज का टॉपिक यही हम करने वाले हैं, ओके. सो नाउ ये जो है व्हाट आर द फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग पेवमेंट डिजाइन. फर्स्ट फैक्टर इज योर ट्रैफिक एंड लोडिंग, ओके. ये याद रखना, whenever whatever we are designing, whether it is building structure, मतलब whether it is your footing, column, beam, slab, everything, for what reason we are designing so that it will sustain certain amount of load without any failure, okay. वैसे यहाँ पे भी क्या आता है, इन दिस केस ऑल्सो पेवमेंट में भी कुछ लोड आता है, ओके. दैट इज योर ट्रैफिक एंड लोडिंग, ट्रैफिक लोड उसको बोलते हैं, ओके. एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेन एवर वी डू डिजाइन हम लोग को लोड याद रखना पड़ता है, वेदर इट इज सेल्फ लोड, राइट, वेदर इट इज एक्सटर्नल लोड, मतलब हर टाइप का लोड हमको जरूरी है क्योंकि लोड के बिना तो फालतू डिजाइन करने का तो कुछ फायदा नहीं है, राइट. लोड आएगा बोल के हमको एक डिजाइन करना है, इसी हिसाब से यहाँ पे भी एक लोड आ रहा है विच इज द ट्रैफिक लोड, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस ओनली तुम्हारा पेवमेंट का थिकनेस कितना देना है वो वैरी करता है. अब तुम बोलो ज्यादा ट्रैफिक जिस एरिया में होगा वहाँ का थिकनेस क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा ना कम होगा, पेवमेंट का थिकनेस व्हाट शुड बी द, इट शुड बी मोर और लेस, इफ ज्यादा देना है, राइट. और जहाँ पे तुम्हारा ट्रैफिक लोड कम है वहाँ पे उतना ज्यादा देना, मतलब बहुत सारा लेयर्स देने का भी जरूरत नहीं और ईच लेयर का उतना मोटा मोटा थिकनेस देने का जरूरत भी नहीं है इफ दैट इज लो ट्रैफिक एरिया. सिमिलरली अब इस ट्रैफिक के अंदर में क्या आता है, देयर इज वन एज आई सेड एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेल लोड, व्हील लोड, ठीक है. और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेशन ऑफ लोड. व्हाट वी आर डिजाइनिंग पेवमेंट फॉर डिजाइन लाइफ. पेवमेंट सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं टिकेगा, ऐसा डिजाइन नहीं करना हमको, या 1 साल 2 साल के लिए टिकेगा ऐसा भी डिजाइन नहीं करना है. देयर इज सम डिजाइन पीरियड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पेवमेंट वी आर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑल्सो द क्लासिफिकेशन ऑफ द रोड, मतलब कि किस टाइप के रोड पे हम कैसा टाइप का पेवमेंट दे रहे हैं, वेदर इट इज योर हाईवे, एक्सप्रेसवे, या तुम्हारा रूरल एरिया मतलब जो विलेज एरिया है वहाँ का रोडवे है,
Oh, also whether it is your flexible or rigid pavement, right? उसके ऊपर भी ये जो तुम्हारा आ रहा है रिपीटेशन ऑफ लोड, मतलब कि कितना बार बार ये जो लोड आएगा, ट्रैफिक लोड थ्रू आउट इट्स डिजाइन पीरियड। हम लोग डिजाइन करते हैं कितना पीरियड के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द पेवमेंट, 15, 20, 30, 10 ईयर्स ऐसा भी होता है, ठीक है। तो 10 साल के लिए, 15 साल के लिए तो एक ही गाड़ी नहीं जाएगा, वहां से बहुत सारा गाड़ी जाएगा और सिमिलर टाइप का गाड़ी जाएगा इन अ रिपीटिव मैनर, राइट, रिपीटेटिव मैनर। सो वी हैव टू कैलकुलेट दैट रिपीटेशन ऑफ लोड ऑल्सो, तो यहाँ पे वही हमको चाहिए, ठीक है। टायर प्रेशर भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जब भी तुम लोग डिजाइन करोगे स्पेशली इन योर क्या बोलते हैं रिजिड पेवमेंट, वहाँ पे टायर प्रेशर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दिस पैरामीटर्स, ओके। तो ये सब हमको जानना जरूरी है। नेक्स्ट इज व्हाट, स्ट्रक्चरल मॉडल्स, मतलब कि जो भी हम लोग जो मॉडल डिजाइन कर रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर को, पेवमेंट स्ट्रक्चर को हाउ वी विल डिजाइन, किसको ऊपर मॉडल बेस करके हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मेनली बोला जाता है इट इज लेयर्ड इलास्टिक मॉडल, मतलब कि ये लेयर वाइज है और ऑल द लेयर्स आर इलास्टिक इन नेचर, ऐसा मतलब कि लोड आएगा वो डिफॉर्म होगा, लोड जाएगा वो फिर से अपना जगह पे वापस आ जाएगा। इलास्टिक का मतलब तो वही है ना, तुम खींचो के एक रबर बैंड को तो वो एक्सटेंड होता है, लेकिन तुम उसको मतलब प्रेशर, उसको लोड को हटाओ, फोर्स को हटाओ तो वो अपने आप अपना इनिशियल स्ट्रक्चर मतलब इनिशियल उसमें आ जाएगा, कंडीशन में आ जाएगा, राइट। सो पेवमेंट शुड बी लाइक दैट ओनली, ओके। उसको भी वैसे इलास्टिक मॉडल के हिसाब से हमको ये डिजाइन करना है एंड इट इज लेयर्ड स्ट्रक्चर, राइट। उसमें से ये सब फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है, स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिफ्लेक्शंस एंड ऑल थिंग्स, ओके। दूसरा है मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, कि इसके ऊपर भी हम लोग का पेवमेंट डिजाइन डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि इलास्टिक मॉड्यूलस, पोजीशन रेशियो, ये मेनली आता है तुम्हारा फ्लेक्सिबल पेवमेंट के लिए, और ये सब आता है जो मॉड्यूलर सबग्रेड रिएक्शन, ये सब आता है तुम्हारा किसके ऊपर आता है, रिजिड पेवमेंट के टाइम में यूज करते हैं, ओके। एंड द अदर फैक्टर इज व्हाट, एनवायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, मतलब कि तुम्हारा टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन पेवमेंट थिकनेस, या पेवमेंट डिजाइन में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये है। प्रेसिपिटेशन का भी क्या इफेक्ट है, ये भी है। डिपेंडिंग अपॉन इट ओनली वी हैव टू डिजाइन द पेवमेंट इन सच अ वे कि इट विल टैकल ऑल द क्या बोलते हैं, जो भी टेम्परेचर या प्रेसिपिटेशन की वजह से जो भी स्ट्रेस, स्ट्रेन आ रहा है पेवमेंट के ऊपर, वो टैकल कर पाए, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस फैक्टर्स आवर पेवमेंट डिजाइन इज डिपेंडिंग, ओके, इज अफेक्टेड। नाउ इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर दिस वन, फर्स्ट केस, ये हमको स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, ओके। सो फर्स्ट है क्या तुम्हारा, ट्रैफिक एंड लोडिंग, उसके अंदर एक आता है क्या था, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन एंड एक्सेल लोडिंग। नाउ बिफोर स्टार्टिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सेल, ये हमको जानना है। सपोज ऐसा हम टॉप व्यू लिए हैं, ये एक कार है, इस कार का हम टॉप व्यू लिए हैं, दिस इज द फ्रंट बोनेट एंड दिस इज द बम्पर, ठीक है। ये वाला है फ्रंट पोर्शन, ये वाला है बैक पोर्शन व रियर पोर्शन। तो फ्रंट पोर्शन में ये जो है दिस इज द व्हील, ये है तुम्हारा व्हील बेस, और ये जो है ओके दैट इज द एक्सल, इसको बोलते हैं फ्रंट एक्सल, एंड दिस इज द पीछे वाले को हम बोलते हैं रियर एक्सल। जैसे कि इस वाले कार में देखो यहाँ पे क्या दिया है, फ्रंट ड्राइव एक्सल, और दिस इज योर रियर ड्राइव एक्सल, ओके। ये देखो रियर ड्राइव एक्सल। तो एक्सल कॉन्फ़िगरेशन मतलब पीछे मेनली हम लोग जब भी डिजाइन करते हैं, प्लीज रिमेंबर फॉर डिजाइन पर्पस हम लोग कौन सा एक्सल कंसिडर करते हैं, हम लोग पीछे वाला कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मतलब दोनों में से पीछे से ज्यादा लोड तुम्हारा पेवमेंट में पड़ता है। इसीलिए हम लोग को व्हेनेवर व्हाइल डिजाइनिंग अगर एक्सल लोड अगर बोल रहा है तो समझ लेना ये रियर एक्सल के बारे में बोल रहा है, ओके। सो रियर एक्सल के ऊपर जो लोड आ रहा है दैट इज द एक्सल लोड, ओके। और एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी व्हीकल का एक्सल कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारा इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि ये वाला सिंगल एक्सल है। तुम लोग देखो यहाँ पे क्या एक्सल है, एक ही एक्सल है, सो दिस इज सिंगल एक्सल, ओके। कुछ कुछ व्हीकल्स में क्या होता है, दो एक्सल्स रहता है पीछे, राइट, दैट इज योर डुअल एक्सल, ओके, या टैंडम एक्सल भी बोल सकते हो। कुछ कुछ का फिर तीन ठो भी रहता है, उसको हम ट्राइडम भी बोल सकते हो। किच किच का तुम्हारा क्या होता है, इट विल बी मल्टी एक्सल, मतलब
मोर देन 3, मोर देन मतलब दो, एक से ज्यादा को हमको मल्टी एक्सल ही बोलते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो सब मल्टी एक्सल में चला जाता है। नाउ एक्सल लोड किसको बोलते हैं, देखो होल लोड, द vehicular load will be transferred to the axles, then from axle it will be, देखो ये है तुम्हारा एक्सल, हम पीछे वाला का एक एक्सल निकाल के ऐसा निकाले, पीछे वाला गाड़ी का एक एक्सल निकाल के। नाउ दिस इज व्हाट, ये क्या है, ये सिंगल एक्सल है कि टैंडम एक्सल है, क्या है, तुमको एक ही एक्सल दिखाई दे रहा है, राइट। तो दिस इज योर, हेलो, यस मैम। तो ये क्या एक्सल है, सिंगल Single. एक्सल है, ठीक है। अब ये सिंगल एक्सल को तुम काटो, काट के कोई भी लेफ्ट या राइट में जाओ, ठीक है, लेफ्ट या राइट का कोई भी एक पोर्शन पकड़ लो, तो उसमें कितना टायर है, 2 करके 4, 2 हाँ? हाँ? 4 टायर। दो है। सो इस वाले का एक्सल कॉन्फ़िगरेशन हम क्या बोलेंगे, दिस इज सिंगल एक्सल डुअल टायर। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है, कोई भी व्हीकल्स का। जैसे सिंगल एक्सल है, 2 टायर्स, मतलब पीछे इस तरफ कोई भी अगल बगल में एक ही पकड़ना है, लेफ्ट और राइट में कोई भी एक पकड़ना है और देखना कितना टायर है, ठीक है। सो सिंगल एक्सल 2 टायर या सिंगल एक्सल डुअल टायर, ठीक है, इसको इस कॉन्फ़िगरेशन को ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि एक्सल लोड क्या है। हम बोले थे कि देखो यहाँ से आ रहा है पूरा ये व्हीकल का लोड आएगा तुम्हारा कहाँ पे, एक्सल से होकर व्हील पे जाएगा, ओके। मतलब कि तुम्हारा ऐसे लोड आ रहा है व्हीकल से ऊपर, एक्सल से होकर कहाँ पे जाएगा, व्हील्स में जाएगा। अब व्हील से तुम्हारा कहाँ पे जाएगा, पेवमेंट में। दिस इज द पेवमेंट टॉप मोस्ट लेयर, ओके, मतलब टॉप सरफेस का ऊपर वाला पोर्शन है। अब नीचे क्या है, पूरा डिफरेंट लेयर्स आते हैं, ठीक है, जैसे सरफेस कोर्स, बेस कोर्स, ठीक है, फिर तुम्हारा सब बेस, सब ग्रेड, ऐसा ऐसा करके नीचे जा रहा है। सो अल्टीमेटली कैसे जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है लोड, एक्सल लोड जा रहा है, फिर एक्सल लोड से तुम्हारा व्हील में इस तरफ जा रहा है और इस तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर उससे तुम्हारा कहाँ जा रहा है, इससे तुम्हारा ट्रांसफर हो रहा है कहाँ पे, पेवमेंट में। तो ऐसे ट्रांसफर होता है, फर्स्ट एक्सल में आता है, फिर उसके बाद व्हील्स में जाता है, ओके। डिवाइड कर दो, अगर ये तुम्हारा 80 आ रहा है तो ईच व्हील में कितना आएगा, ईच व्हील से पेवमेंट में कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, सपोज दिस इज 80 किलो न्यूटन, तो ईच व्हील में कितना लोड आ रहा है, इन दिस केस T इक्वल्स टू कितना होगा, एनीवन, देख के क्या लग रहा है कितना होना चाहिए, 80 टोटल लोड आ रहा है, ठीक है, पीछे वाले 80 एक्सल में 80 किलो न्यूटन आ रहा है। अब वो यहाँ से ट्रांसफर होकर तुम्हारा इसमें जाएगा, ठीक है, पेवमेंट में जाएगा, तो वाया ईच व्हील कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, पहले बोलो इस तरफ कितना जाएगा, इस तरफ कितना जाएगा, 40 जा रहा है। अब ये 40 में 2 टायर इक्वल ट्रांसफर करेगा, सो हाँ 20 किलो न्यूटन ईच, ओके। ऐसे भी तुम लोग को मतलब अगर डिजाइन में कहीं पर ऐसा दिया रहेगा तो तुमको व्हील लोड नहीं दिया रहेगा, ठीक है, देन वी हैव टू कैलकुलेट इन लाइक दिस। पहले कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, फिर एक्सल लोड अगर दिया है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर ये सिंगल होता तो यहाँ से 40 यहाँ से 40 होता, लेकिन डुअल है तो इसलिए 20 करके ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर? अब देखो यस मैम। ओके, यही देखो 80 जा रहा है यहाँ से, मतलब किलो न्यूटन को हम ट्रांसफर कर दिया टन में, 8.16 टन, दिस इज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड, ओके। ये वाला प्लीज रिमेंबर, दिस इज स्टैंडर्ड एक्सल लोड, नॉट ओनली एक्सल लोड, ओके। स्टैंडर्ड एक्सल लोड जा रहा है, हम क्या है, आई विल डिस्कस इन लेटर लेक्चर, ओके। अब देखो यहाँ से जाके व्हील में व्हील लोड जा रहा है, ऐसे पेवमेंट में ट्रांसफर हो जाएगा, ओके। नाउ दिस इज एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये क्या है, सिंगल एक्सल है और यहाँ पे कोई भी एक पोर्शन देखो, लेफ्ट या राइट कोई भी पकड़ लो, एक ही टायर है, सो दिस इज सिंगल एक्सल, सिंगल टायर या सिंगल व्हील, ओके। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन क्या है,
प्लीज रिमेंबर ऑल दीज आर द रियर एक्सल, ओके, मतलब पीछे वाला को पकड़ के हम लोग कर रहे हैं, ओके। तो ये वाला क्या है, सिंगल एक्सल, कोई भी लेफ्ट या राइट देखो, 2 टायर और डुअल टायर्स या डुअल व्हील, ओके। ये वाला को बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पे 2 एक्सेल्स है, जिसको कॉल्ड टैंडम एक्सल, ओके। तुम लोग डुअल एक्सल भी बोल सकते हो, मेनली यहाँ पे टैंडम यूज करते हैं, टैंडम एक्सल, सिंगल टायर। अब ये कैसे, देखो टैंडम एक्सल का कोई भी एक्सल पकड़ो, फिर उसका कोई भी एक पोर्शन लेफ्ट या राइट पकड़ो, अब देखो कितना टायर है, एक ही टायर है, तो टैंडम एक्सल, सिंगल टायर, ठीक है। टैंडम एक्सल डुअल टायर मत कर देना, ये वाला कंफ्यूज मत होना। अब ये वाला क्या होगा बोलो तो, ये वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 टायर है, सॉरी 2 एक्सल है, सो दिस इज क्या है, ये 2 एक्सल है तो टैंडम हुआ, ठीक है। अब Yes, कोई भी ma'am. एक्सल का लेफ्ट या राइट में पकड़ो, कितना टायर है, 2. 2, तो ये क्या होगा, ये कॉन्फ़िगरेशन बोलो, 2 नाम क्या है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे यहाँ पे बोलो दिस इज सिंगल एक्सल, सिंगल टायर, सिंगल एक्सल, डुअल टायर, वैसे टैंडम एक्सल, सिंगल टायर, तो ये क्या है, डबल एक्सेल सिंगल. टैंडम एक्सल है, 2 मल्टी एक्सल है, टायर, मल्टी टायर, मल्टी नहीं है, दो कितना टायर है, टायर, डुअल टायर. 2, हाँ, सो डुअल टायर. टैंडम एक्सल, 2 टायर या डुअल टायर, ओके ओके। अब आते हैं इसको, तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए, अब हम लोग जाते हैं फिगर में, ठीक है, डायग्राम दिखाने से पता चलेगा। नेक्स्ट इसमें ये वाला बोलो, ये क्या है, ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, ये सब ट्रक्स, पीछे देखो, पीछे वाला में देखो, डुअल टायर. ये सिंगल कितना, सिंगल टायर, सिंगल एक्सल, एक्सेल डुअल सिंगल टायर. टायर, सिंगल टायर, सिंगल टायर, हाँ वेरी गुड, देखो सिंगल एक्सल, सिंगल सिंगल व्हील, ठीक है। ये वाला सिंगल एक्सल सिंगल डुअल एक्सेल डुअल टायर, टायर. सिंगल एक्सेल. डुअल टायर, देखो 2 है, वेरी गुड, टायर, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ हाँ वेरी गुड। ये वाला टैंडम एक्सल, सिंगल टावर मल्टी क्या होगा, डुअल टायर, दो होगा। हाँ Yes, ये ma'am. सिंगल नहीं है, देखो टैंडम एक्सल डुअल 2, टायर, हाँ डुअल टैंडम टायर. एक्सल, 2 टायर, हाँ डुअल टायर. वेरी गुड। और ये टैंडम ये एक्सल डुअल टायर, टैंडम नहीं, मतलब 3 है, ठीक है, तो ट्राइडम एक्सल ट्राइडल एक्सेल डुअल टायर. सिंगल है, हाँ ट्रिपल सिंगल टायर. है। सिंगल. अब ये वाला है मैम सिंगल टायर, सिंगल 2, टायर. 2 सिंगल है टायर, तो 2, डुअल टैंडम टायर. एक्सल, 2 डुअल टायर टायर. है, ट्राइडम एक्सल, यस मैम, डुअल व्हील, ओके वेरी गुड। अब ये वाला क्या है यस मैम, ये तुम्हारा मल्टी एक्सल, मल्टी ठीक है, एक्सेल. यस मैम, डुअल टायर, बेसिकली ट्राइडम, टैंडम ये सब मल्टी एक्सल ही है, लेकिन हम उसको स्पेसिफाई नाम दे दिया है, टैंडम ओके। सो दिस इज मल्टी थ्री एक्सल, टायर, ओके, मल्टी एक्सल व्हीकल्स। अब Yes. बोलो इतना सारा टायर क्यों, हाँ इतना नहीं, ये वाला छोड़ो, ये वाला क्या हम बोल रहे और भी हैं, ज्यादा हो जो गया। पार्ट बोल रहे हैं, तुम जो भी बोल रहे थे ये वाला ठीक है, हाँ ठीक है। यस मैम, अब बोलो व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग सो मेनी टायर्स, क्यों, यस. यस मैम, कोई भी व्हीकल्स में इतना सारा टायर्स हम क्यों दे रहे हैं, देखो साइज भी बढ़ता जा रहा है, राइट, जैसे जैसे टायर बढ़ रहा है तुम्हारा साइज या इसका लोडिंग कैपेसिटी भी बढ़ता जा रहा है, राइट, तो वही लोड करने के लिए इसलिए इतना टायर लोड को कैरी करना. कैरी करने के लिए ज्यादा व्हील्स लग रहे हैं, ओके। अब आते हैं कि देखो हम बोले थे व्हेनेवर फॉर डिजाइन कंसीडरेशन हमको क्या पकड़ना है, रियर एक्सल, मतलब कि पीछे वाला टायर का ही लोड हमको पकड़ना है, क्योंकि वहीं पर ही ज्यादा लोड, मैक्सिमम लोड कंपेयर टू द फ्रंट एक्सल ट्रांसफर होता है रियर एक्सल से, ठीक है। एंड फॉर डिजाइन पर्पस हम कोई भी मतलब जो स्कूटर, ठीक है, या तुम्हारा पैसेंजर कार, ये सब लेके हम डिजाइन नहीं करते, उसका जो भी लोड कैरी करते हैं पैसेंजर कार, ये सब ऑटो वोटो, ये सब से हम लोग डिजाइन नहीं करते हैं, ठीक है। हम लोग किससे करते हैं, वी विल यूज कमर्शियल व्हीकल, ओके। तो कमर्शियल व्हीकल किसको बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल उसी को बोलते हैं जिसका लैडन वेट इज ग्रेटर देन 3 टन्स, ये याद रखना। जो भी व्हीकल अगर उसका लैडन वेट, अब लैडन वेट क्या है वो हम बोलेंगे, विच इज ग्रेटर देन 3 टन, दैट कम्स अंडर योर कमर्शियल व्हीकल। तो हम लोग डिजाइन
तो यहाँ पे तो एक रास्ते से तो तुम्हारा बहुत सारा गाड़ी जा सकता है, तुम्हारा कमर्शियल व्हीकल्स भी जा सकता है, ये जो ह्यूज लोड ट्रक्स ये सब है कमर्शियल व्हीकल्स ही है, पैसेंजर कार, ऑटो रिक्शा ये सब भी तो जाता है, राइट। तो हम क्या सबका लोड पकड़ के करेंगे? नहीं, हम लोग किसका पकड़ेंगे? जिसका लोड ज्यादा होता है 3 टन से, राइट। अब 3 टन से ज्यादा जिसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियल व्हीकल्स। नाउ व्हाट इज laden weight? laden weight is the gross weight of the vehicle with the loaded condition, with loaded condition मतलब कि अगर कोई भी व्हीकल है इसमें टोटल लोड वोड डंप करके टोटल वेट अगर 3 टन से ज्यादा आ रहा है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज द कमर्शियल व्हीकल। ओके, कौन ऐड हो रहा है अभी? तो 20 जन से 18 जन आ गया, कौन चला गया फिर से? ठीक है, तो ये 2 कंडीशन याद रखना है, रियर एक्सल लोड कंसिडर करना है एंड कमर्शियल व्हीकल कंसिडर करना है। कमर्शियल व्हीकल किसको बोलेंगे? जिसका laden weight इज ग्रेटर देन 3 टन्स। ओके, और laden weight क्या है? टोटल वेट। ओके, अब ये सभी एग्जांपल्स ऑफ द कमर्शियल व्हीकल। ठीक है, अगर इसको हम लोग पूरा लोड कर देंगे तो इन लोग का ऑटोमेटिकली वेट इट विल बी ग्रेटर देन 3 टन्स। तो इन्हीं सबका लोड को लेकर ही हमको कंसिडर करना है फॉर डिजाइन ओके ऑफ द पेवमेंट, कि ये वाला में कितना लोड जा रहा है, उस लोड से कितना एक्सल लोड जा रहा है, उस एक्सल लोड से कितना लोड ट्रांसफर हो रहा है, तो उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब आते हैं, देखो ये वाला का लोड अलग होगा, ये वाला का भी लोड अलग होगा, ये वाला का भी लोड अलग होगा, राइट। देन क्या होगा? फॉर एवरी ऑल टाइप्स ऑफ ऑल कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए लोड विल बी डिफरेंट एज वेल एज डिफरेंट लोड के लिए इफेक्ट विल बी डिफरेंट, राइट। तो हमको करना क्या है? वी विल कन्वर्ट ऑल द लोड्स टू वन यूनिट लोड, मतलब कि एक लोड में हम कन्वर्ट कर देंगे, विच इज योर स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ठीक है, तो हम लोग ये वाला स्टैंडर्ड इसका इक्वल टू कितना स्टैंडर्ड एक्सल लोड आ रहा है वो हमको निकालना है, इसका इक्वल्स टू कितना स्टैंडर्ड लोड आ रहा है, और इसका इक्वल्स टू कितना स्टैंडर्ड लोड आ रहा है। क्लियर है? स्टैंडर्ड हम लोग करते हैं ना, स्टैंडर्डाइज करते हैं। ठीक है, तो वी विल कन्वर्ट ऑल दिस लोड इनटू इन लोग का इक्विवेलेंट एक लोड में कन्वर्ट करेंगे विच इज स्टैंडर्डाइज, इसलिए इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ठीक है, अब ये वाला है स्टैंडर्ड एक्सल लोड, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सल कॉन्फ़िगरेशन, कि कुछ एक्सेलरेशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना है वो दिया गया है। ठीक है, सो सपोज इस वाले केस में दिस इज योर व्हाट, दिस इज सिंगल एक्सल डुअल टायर, राइट। तो इस केस में बोला गया है ऐसे टाइप के लिए स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना होना चाहिए? 80 किलो न्यूटन। ठीक है, अब उसको तुम लोग न्यूटन में कन्वर्ट करके केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, फिर केजी से टन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, तो कन्वर्ट करके ये वाला आएगा तुम्हारा 8.16 टन। ठीक है, आइदर 80 किलो न्यूटन या 8.16 टन। ठीक है, तो दिस इज योर स्टैंडर्ड एक्सल लोड। तो इस हिसाब से ये डिफरेंट कैटेगरी में दे दिया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सल कॉन्फ़िगरेशन के लिए स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना कंसीडर करना है। देखो सिंगल एक्सल विथ सिंगल टायर के लिए बोला है कितना टन? 6.6 टन। ठीक है, सिंगल एक्सल विथ डुअल टायर के लिए कितना है? 8.16 टन। ठीक है, टैंडम एक्सल विथ डुअल टायर बोला है कितना? 15.1, और ट्राइडम एक्सल विथ डुअल टायर इतना बोला है 22.9 टन सही है। ओके, तो अगर इसको पिक्चर में देखेंगे तो सिंगल एक्सल सिंगल टायर के लिए इतना है, डुअल एक्सल सिंगल एक्सल डुअल के लिए इतना है, टैंडम एक्सल डुअल के लिए इतना है 15.1 है, और ट्राइडम एक्सल डुअल के लिए 22.9 टन है। तो ये एक स्टैंडर्डाइज कर दिया है। तुम लोग का क्वेश्चंस आ सकता है इंटरव्यू में, सॉरी उसमें क्या एमसीक्यूज या एग्जाम में बोलेगा व्हाट इज द स्टैंडर्ड एक्सल लोड फॉर अ सिंगल एक्सल डुअल टायर व्हील एक्सल कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या आंसर क्या है? 8.16। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया, बोलो अब इसका स्टैंडर्ड एक्सल लोड कितना है, तो हमको लिखना है उतना है बोलते। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक वाज व्हाट? कॉन्टैक्ट एरिया। ये सब तो हो गया, स्टैंडर्डाइज करना है हमको, ये याद में रखना है कि वी हैव टू स्टैंडर्डाइज द ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सल लोड को हम एक ही स्टैंडर्ड एक्सल लोड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके,
नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? अच्छा आछो तो बोला जाए ना वो। Yes, ma'am. ओके ओके, सो कॉन्टैक्ट एरिया एंड कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है? Yes, सपोज ma'am. एक एग्जांपल ये सिंगल एक्सेल सिंगल व्हील का, ठीक है? तो यहाँ से एक्सेल लोड ट्रांसफर हो रहा है, ये है व्हील लोड, P इज द व्हील लोड एंड दिस इज द टॉप सरफेस और ये है सबग्रिड। ओके, सो ये सबग्रिड के ऊपर जितना भी लेयर टोटल थिकनेस विल बी पेवमेंट थिकनेस, इसी को बोलते हैं पेवमेंट, ठीक है? अब इसको हम अगर बड़ा करके देखेंगे तो कैसा आएगा? सपोज दिस इज द व्हील लोड, इसके यहाँ से P ट्रांसफर हो रहा है रोड, ठीक है, लोड, और किस एरिया के थ्रू जा रहा है? द कॉन्टैक्ट एरिया, मतलब कि जो कॉन्टैक्ट में है एरिया विद द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन द टायर एंड द टॉप सरफेस, दैट इज द कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है? इन जनरल हम लोग फॉर सिंप्लीफिकेशन हम लोग बोलते हैं कि ये वाला सर्कुलर कॉन्टैक्ट एरिया होता है, ये वाला जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वो सर्कुलर इन कंडीशन, सर्कुलर की तरह दिखाई देता है। फॉर डिजाइन पर्पस हम लोगों ने एज्यूम कर लिया है, ठीक है? सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग कंसिडर करते हैं कि ये कॉन्टैक्ट एरिया इज सर्कुलर इन नेचर, लेकिन जनरली सर्कुलर नहीं होता है, ठीक है? तो सर्कुलर होने से वहां पे एक रेडियस आएगा, सपोज दैट रेडियस इज, तो एक सर्कल यहाँ पे अगर इसका छाप अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी सर्कुलर, ऐसा होगा। तो सर्कुलर का ये रेडियस है कितना? a, ओके, सो दैट इज अ रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है? अगर तुमको कैपिटल P पता है, अगर तुमको ये स्मॉल a मतलब ये रेडियस पता है, तो कैन वी कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट प्रेशर? यू नो लोड, यू नो रेडियस, तो रेडियस पता है मतलब क्या है? वी विल इजीली कैलकुलेट द एरिया आल्सो, ठीक है? सो यू नो लोड, यू नो एरिया, सो कैन वी कैलकुलेट प्रेशर? Yes, ma'am. हाँ, सिंपल है। जैसे Yes, कि ma'am. contact pressure is what? Load per unit area. Pressure is what? Load per unit area. So contact pressure is what? Wheel load per contact area. Contact area. Right? So प्रेशर को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, व्हील लोड को कैपिटल P से, और एरिया का क्या है? पाई आर स्क्वायर, राइट? पाई आर स्क्वायर। सो एरिया को यहाँ पे रेडियस को हम a से डिनोट किया है, सो पाई a स्क्वायर। सो ऐसे भी तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रिमेंबर करना है तुम लोग को। बहुत जगह पर कॉन्टैक्ट प्रेशर यूज करना पड़ता है इन द फॉर्मूलाज, ओके? तो कॉन्टैक्ट प्रेशर नहीं दिया रहता, क्या दिया रहता है? दे विल गिव यू द कॉन्टैक्ट रेडियस a दिया रहेगा एंड दे विल गिव यू द व्हील लोड, ठीक है? या कभी कभी एक्सेल लोड लेगा, उससे हमको व्हील लोड कैलकुलेट करना है। वी नो द a मतलब रेडियस, सो हमको p कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ऐसे डायरेक्टली p का वैल्यू नहीं देगा, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर का वैल्यू नहीं देगा, ऐसे भी दिया रहेगा, ओके? सो वी आर, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग स्टेप बाय स्टेप कि ये सब कैसे कैलकुलेट करना है। नाउ देखो, इसका इम्प्रिंट हम बोले थे क्या होता है? इन जनरल कैसे दिखता है? इन जनरल इट इज कॉम्बिनेशन, मतलब कि रेक्टेंगल प्लस सेमी इलिप्टिकल, सॉरी सेमी सर्कुलर दोनों तरफ, या इलिप्टिकल दोनों तरफ, ठीक है? मतलब दो इलिप्टिकल प्लस यहाँ पे दो सेमी इलिप्टिकल प्लस एक रेक्टेंगल को फॉर्म करके ये वाला इम्प्रिंट होता है। बट ये वाला बहुत, इसका एरिया निकालना बहुत टफ हो जाता है, राइट? सो इन दैट केस व्हाट वी आर डूइंग फॉर सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाई करके हम लोग बोल रहे थे कि इसका एक इक्विवेलेंट, मतलब सेम टू जितना भी एरिया ये फॉर्म करेगा उसका हम इक्विवेलेंट एक एरिया कंसिडर करेंगे विच विल बी सर्कुलर इन नेचर, ओके? तो जिसका एरिया रेडियस विल बी a, मतलब ये जो भी एरिया फॉर्म हो रहा है यहाँ पे इम्प्रिंट दे रहा है, ये एरिया विल बी सेम, बोथ विल बी सेम। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ऐसा नहीं करके वी आर इन डिजाइन, तुम लोग का कॉन्टैक्ट प्रेशर इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ सर्कुलर एरिया, ओके? Yes, ma'am. जनरली ऐसा होता है, देखो व्हील यहाँ पे छाप दे रहा है, इसका छाप ऐसा होता है जनरली, ठीक है? रेक्टेंगुलर प्लस सम इलिप्टिकल करके, ओके? तो इतना टफ हो जाएगा इसका एरिया निकालना, तो इसीलिए हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको सर्कुलर कंसिडर कर दिया है, ओके? नाउ रिजिडिटी फैक्टर, नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस कॉन्टैक्ट प्रेशर एज वेल एज द टायर प्रेशर वन फैक्टर इज डिफाइंड, ओके? रिजिडिटी फैक्टर, जिसका डेफिनेशन ये है। कॉन्टैक्ट, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑल दिस विल कम इन योर MCQs, ओके? MCQs में जनरली आता है ये, इसीलिए हम लोग कर दे रहे हैं। तो फर्स्ट क्या है? RF rigidity factor is defined as ratio of contact pressure by tire pressure. Now अब ये कंफ्यूजन आ जाएगा कि कॉन्टैक्ट प्रेशर क्या है, टायर प्रेशर क्या है, दोनों तो एक ही लग रहा है, लेकिन दोनों एक नहीं है, ओके? कॉन्टैक्ट प्रेशर है तुम्हारा कहाँ पे होता है? इट इज एक्टिंग ऑन द पेवमेंट, ठीक है?
कांटेक्ट प्रेशर है कि जो भी कांटेक्ट छाप जा रहा है इम्प्रिंट उसके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, मतलब पेवमेंट के ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है, दैट इज कांटेक्ट प्रेशर। नाउ टायर प्रेशर इज व्हाट, टायर प्रेशर है टायर के अंदर जो प्रेशर, हवा भरते हैं ना हम लोग, राइट, अंदर तो मतलब बलून है, बलून के अंदर हवा भरो तो अल्टीमेटली वहां पे भी एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, राइट। वैसे ही टायर के अंदर भी हम लोग हवा दे रहे हैं, तो हवा की वजह से टायर के अंदर जो प्रेशर, टायर के सरफेस मतलब इनर सरफेस के अंदर जो प्रेशर पड़ रहा है दैट इज द टायर प्रेशर, ठीक है। अब कभी कभी तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी ग्रेटर देन टायर प्रेशर, या टायर प्रेशर विल बी ग्रेटर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर, ऐसा कंडीशन आ जाता है। तो हम लोग वो भी डिफाइन करेंगे कि कब कब आता है, ठीक है। कब तुम्हारा टायर प्रेशर कम हो जाता है तो रिजिडिटी फैक्टर का वैल्यू क्या आएगा, टायर प्रेशर ज्यादा है, हवा कम है, मतलब ज्यादा है मतलब बहुत तुम टान टान के भर दिया, पूरा फुल कर दिया टायर को हवा देकर, राइट, एकदम टान टान हो जाता ना, तो तब रिजिडिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है। और एक केस होता है कि जिसको बोलते हैं मतलब ओके, ठीक है, मतलब सेफ है वो वाला कंडीशन, विच इज दैट इज व्हाट, बोथ शुड बी इक्वल, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर शुड बी इक्वल, तब उसको बोलेंगे कि वो टायर इज इन गुड कंडीशन, ठीक है। तो हमको ज्यादा हवा भी नहीं भरना चाहिए, हमको मतलब खाली खाली ऐसा भी नहीं रखना चाहिए, तो एक इक्वल अमाउंट में करना चाहिए जहाँ पे ये दोनों सेम रहेगा, ओके। नाउ बोलो अगर ये दोनों सेम रहेगा तो रिजिडिटी फैक्टर क्या होगा तब, दैट विल बी 1, ओके। तो हम लोग को चाहिए कि देखना है कि रिजिडिटी फैक्टर फॉर गुड स्मूथ राइडिंग, तुम्हारा रिजिडिटी फैक्टर या लॉन्जिविटी ऑफ टायर को रखने के लिए, उसको लॉन्जिविटी बढ़ाते मतलब ठीक से रखने के लिए रिजिडिटी फैक्टर शुड बी इक्वल टू 1, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर एंड टायर प्रेशर शुड बी इक्वल टू 1। अब बोला है फॉर डिजाइन पर्पज वी कंसीडर दिस और दिस इक्वल्स टू 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना होना चाहिए कि कॉन्टैक्ट प्रेशर या टायर प्रेशर का वैल्यू शुड बी विद इन दिस लिमिट, ओके, या इज इक्वल्स टू 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा एक चार्ट अगर सपोज RF इक्वल्स टू 1 होता है, देन क्या है, कॉन्टैक्ट प्रेशर इज इक्वल्स टू टायर प्रेशर, मतलब 7/7 विल गिव यू 1, राइट। तो यही पर देखो इक्वल्स टू 1 होने से कॉन्टैक्ट भी 7 है, टायर भी 7 ही है, मतलब उतना ही है, दोनों का इक्वल वैल्यू है, ओके। अगर RF इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो कब होता है RF इज ग्रेटर देन 1 होने से कॉन्टैक्ट प्रेशर विल बी ग्रेटर देन टायर प्रेशर, राइट, मतलब ये RF का वैल्यू ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब तुम्हारा न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, राइट। तो न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन 7 एंड टायर प्रेशर इज लेस देन 7, ये दो केस के अंदर तुम्हारा RF विल बी ग्रेटर देन 1, ये आता है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, व्हेन RF इज लेस देन 1, मतलब क्या है, टायर प्रेशर शुड बी ग्रेटर देन, मतलब डिनोमिनेटर शुड बी ग्रेटर देन न्यूमरेटर। अगर RF का वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब क्या है, TP विल बी लेस देन 1, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, CP मस्ट बी लेस देन TP, ठीक है। तो जब कॉन्टैक्ट प्रेशर इज लेसर देन टायर प्रेशर, या इसको हम उल्टा भी लिख सकते हैं, जब टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर, मतलब टायर के अंदर बहुत ज्यादा हवा है जिसकी वजह से प्रेशर इज वेरी हाई, ठीक है। नाउ इफ दैट टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन तुम्हारा कॉन्टैक्ट प्रेशर, देन दिस केस विल ऑकर, ओके, विच इज व्हेन योर RF विल बी लेस देन 1, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. अब आते हैं इसी के ऊपर, इसी कंडीशन के ऊपर बेस करके हम लोग पिक्टोरियल से समझेंगे, ओके। व्हाट इज दैट, टायर इन्फ्लेशन, मतलब कि ये पूरा भरती है, टाइटली भरती है, बहुत ज्यादा भरती है, या ठीक ठाक है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दिस दीज आर द 3 कंडीशंस, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, अंडर इन्फ्लेटेड, अंडर इन्फ्लेटेड मतलब है कि ज्यादा हवा नहीं है टायर के अंदर, ठीक है। ओवर इन्फ्लेटेड का मतलब है बहुत ज्यादा तुम हवा भर दिए हो, ठीक है। और दे है प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, अब ऑब्वियसली दिस इज गुड और बाकी दो नॉट गुड, राइट। तो जब अंडर इन्फ्लेटेड होता है, ठीक है, तब क्या होता है, देखो अंडर इन्फ्लेटेड होने से इसका डायग्राम देखो कैसा है, यहाँ पे बल्ज हो जा रहा है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहा है, इसकी वजह से ये बल्ज हो जा रहा है,
ओके, इसकी वजह से देखो दिस कंडीशन विल ऑकर, इट विल लुक लाइक दिस, मतलब कि यहाँ पे ज्यादा फोर्स आ रहा है, फोर्स ज्यादा आने से क्या हो रहा है, तुम्हारा आउटर पोर्शन या आउटर वॉल ऑफ द टायर ज्यादा घिस रहा है कंपेयर टू द इनर, ठीक है। तो ये ज्यादा घिसेगा तो क्या होगा, अगेन वियर टियर हो जाएगा, तो इसका लॉन्जिविटी खत्म हो जाएगा टायर का, ओके। इन दिस केस भी वही प्रॉब्लम है, इन दिस केस क्या हो रहा है, देखो तुम्हारा पूरा लोड क्या कर रहा है, सिर्फ ये दोनों कांटेक्ट आ रहा है, राइट, सरफेस के ऊपर कांटेक्ट में आ रहा है, मतलब यहीं से लोड ट्रांसफर होगा, मतलब यही ज्यादा घिसेगा, राइट, कंपेयर टू द इनर पोर्शन, तो ये वाला डैमेज हो जाएगा जल्दी। सिमिलरली इन दिस केस सी ओवर इन्फ्लेटेड में क्या हो जा रहा है, ये जो मिडल वाला पोर्शन है ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है कंपेयर टू दिस आउटर पोर्शन, तो ये ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेसिव वियर इन द सेंटर, ज्यादा घिस रहा है, ठीक है। तो हमको ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सो हमको चाहिए ये वाला, मतलब कि सब इक्वली लोड ट्रांसफर करेगा, तो क्या होगा, इच एरिया में तुम्हारा कम कम प्रेशर ही पड़ेगा, सिर्फ ये लोग लोड ट्रांसफर करेगा तो इसको ही ज्यादा लोड आएगा, इसको ही ज्यादा लोड आएगा, तो ये तो लोड कैरी नहीं कर रहा है। सिमिलरली सिर्फ ये वाला कैरी करेगा तो सब लोड यही ट्रांसफर कर रहा है, मतलब यही ज्यादा घिस रहा है, और बाकी तो एकदम ठीक है, तो ये भी ज्यादा ठीक नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली सबको कम कम लोड मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा, ज्यादा चाप नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट कंडीशन, प्रॉपरली इन्फ्लेटेड, ठीक है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन दिस कंडीशन, ये वाला कंडीशन हम लोग बोल सकते हैं। अंडर इन्फ्लेटेड में क्या कंडीशन आता है तुम्हारा, क्या आता है, अंडर इन्फ्लेटेड का मतलब क्या है, हवा कम है तो टायर प्रेशर क्या होगा, कम होगा ना ज्यादा होगा, टायर के अंदर हवा कम है तो टायर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम होगा, तो वही कंडीशन देखो, टायर प्रेशर इज लेसर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर। कॉन्टैक्ट प्रेशर मतलब कि ये जो प्रेशर इसके ऊपर जा रहा है, सरफेस के ऊपर जो जा रहा है, और टायर का मतलब है कि अंदर से जो प्रेशर आ रहा है, ओके। यहाँ पे क्या है, ओवर इन्फ्लेटेड, ठीक है, मतलब टायर का प्रेशर बहुत ज्यादा है, सो यहाँ पे ये वाला केस आ रहा है, सो टायर प्रेशर इज ग्रेटर देन CP, तो ये दोनों केस नहीं होना चाहिए, हम बोले दिए थे प्रॉपर कंडीशन, दोनों शुड बी इक्वल, मतलब कॉन्टैक्ट प्रेशर और यहाँ से जो भी तुम्हारा हवा में आ रहा है दैट प्रेशर, ओके, तो इट शुड बी इक्वल फॉर गुड कंडीशन, ओके। तो यहाँ पे कुछ हम लोग वही दे दिए हैं कि अगर अंडर इन्फ्लेशन या ओवर इन्फ्लेशन होगा तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, मेनली यही है कि तुम्हारा अंडर इन्फ्लेशन में क्या हो जा रहा है, इस वाला आउटर एज में ज्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है तो आउटर एज विल बियर सून, इस वाले केस में क्या होता है, ओवर में तुम्हारा टान पड़ रहा है तो सिर्फ इनर वाला एज ज्यादा बियर टियर हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर में ये कुछ नहीं होगा, मतलब इक्वली लोड ट्रांसफर कर रहा है तो ज्यादा लोड ट्रांसफर नहीं करेगा, तो इसका लॉन्जिबिलिटी विल बी मोर, राइट। अब इसके ऊपर हम लोग ये रिजिडिटी फैक्टर निकालते हैं, तो 2-3 केस है, एट लो टायर प्रेशर, पहले ये बोलो लो टायर प्रेशर मतलब अंडर इन्फ्लेटेड है या ओवर इन्फ्लेटेड, लो टायर प्रेशर ये अंडर इन्फ्लेटेड है या ओवर, अंडर इन्फ्लेटेड, अंडर इन्फ्लेटेड मतलब हवा कम है टायर में, राइट। सो तब इन दिस केस में देखो अंडर इन्फ्लेटेड मतलब क्या है, देखो ये वाला सिर्फ दो हम डायग्राम के थ्रू समझा रहे हैं, टायर प्रेशर कम है कॉन्टैक्ट प्रेशर से, ठीक है, इसको ऐसे हम समझा दे रहे हैं, टायर प्रेशर इज लेसर देन कॉन्टैक्ट प्रेशर, राइट। अब इसको इक्विलिब्रियम करने के लिए क्या करेगा, टायर के आउटर वॉल से भी प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा, जिससे ये दोनों ऐड होके टीपी से ऐड होके ये इक्विवेलेंट में रहे, नहीं तो ये तो हवा में उड़ जाएगा, राइट, वैसा तो नहीं होगा। तो इसीलिए देखो इसमें ये वाला प्रेशर क्या आ रहा है, इट इज एक्टिंग डाउनवर्ड, मतलब ये वाला टायर को नीचे कंप्रेस कर रहा है, सो वॉल्स ऑफ द टायर इज इन कंप्रेशन, इसीलिए कंप्रेशन की वजह से तुम्हारा ऐसा हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है बोल के ये वाला कंप्रेस हो रहा है, देखो इसीलिए ये ज्यादा टच कर रहा है, ठीक है, कंपेयर टू द इनर सरफेस, ओके। सिमिलरली इन दिस केस हम बोले थे RF इज कॉन्टैक्ट प्रेशर बाय TP, नाउ कॉन्टैक्ट प्रेशर इज ग्रेटर देन TP मतलब क्या है, RF इज ग्रेटर देन 1, ओके। अब सेकेंड केस में क्या है, एट हायर टायर प्रेशर मतलब CP इज लेस देन TP इज ग्रेटर देन CP और TP इज लेसर देन CP, ये बोलो पहले, हाँ, CP लेस देन TP, TP is less than CP,
यस Cp इज लेस देन Tp, ठीक है। तो इस वाले केस में Rf क्या होगा, Rf लेसर देन 1 कि ग्रेटर देन 1? Greater than. Rf का क्या था, कांटेक्ट Cp बाय Tp था, तो Cp अगर लेस है Tp से तो क्या होगा, Rf विल बी लेसर देन 1, राइट। अब इन दिस केस में देखो ये Tp क्या हम बोले थे, इट इज ग्रेटर देन Cp, राइट। मतलब ये देखो यहाँ पे सिर्फ 2 एरो ऊपर से 4 एरो, अभी इनको इक्विलिब्रियम हो गया। हाँ अच्छा ठीक है, ये वाला लास्ट कर देते हैं। सो दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए ऊपर की तरफ भी कुछ प्रेशर जाएगा इक्विवेलेंट करने के लिए, ठीक है। सो ये वाला क्या है, ये वाला खींच रहा है, टायर को खींच रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट इट इज इन टेंशन। सो आउटर वॉल्स विल बी इन टेंशन, इसलिए ऊपर की तरफ जाएगा तो सिर्फ ये वाला पोर्शन ही तुम्हारा कांटेक्ट में आएगा, ये दोनों ऊपर चला जाएगा, टान रहा है, राइट। तो फॉर दैट रीजन ये वाला केस आ रहा है, देखो ये वाला केस नीचे ज्यादा आ रहा है, ये वाला खींच रहा है, राइट। इसीलिए ये वाला ओवर इन्फ्लेशन का है। और तुम्हारा इसके लिए तो क्या है, प्रॉपर टायर प्रेशर के लिए दोनों मस्ट बी सेम, सो Rf विल बी 1 एंड इट इज द प्रॉपरली इन्फ्लेटेड। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके प्लीज वेट, ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट क्लास में हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, Okay, ma'am. और कंटिन्यूएशन रहेगा। Okay, ma'am. ओके ठीक है, फिर थैंक यू। Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.